Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10, Brain and its Sub Parts in detail. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स जो थे उनको ब्रीफली डिस्कस किया था। मेजर पार्ट्स कौन से हैं एंड फर्दर वो किन पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है इसमें हम उन्हीं पार्ट्स को थोड़ा डेप्थ में जाके देखेंगे कि स्ट्रक्चर के साथ साथ उनकी फंक्शनिंग देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे कि ब्रेन जो है उसको 3 मेजर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फर्स्ट part of major part of the brain is forebrain, and that have some subparts as cerebral cortex. Then it is divided into two hemispheres, left hemisphere, right hemisphere, and each hemisphere have its four lobes. Then thalamus, hypothalamus, corpus callosum, nerve fiber that connected both hemispheres, right and left. Limbic system, amygdala, cingulate gyrus, hippocampus, and basal ganglia. These all are the subparts of forebrain. And midbrain have not any part. Its function is just to connect upper and higher brain with lower brain. And the third major part of the brain is hindbrain, and it have also subparts that are pons, medulla, cerebellum, and brainstem. Now we start from forebrain. Forebrain is the most complicated structure, and it is the largest among three major parts of the brain. And brain is like a pinkish jelly, and its weight is about 3 pounds. Usually, it is said that that the weight of human brain in female is 44 ounces and in male 46 ounces. And almost in brain 100 million cells can process and store enough information to fill about 20 million books and retrieve much of this information in a millionth of a second. So it is true that computers are being developed with larger and larger memories and programs that can perform increasingly different tasks. But no machine can match the human brain ability to comprehend a dozen spoken languages and to make jokes in each one. Okay, the first subpart of the forebrain is cerebral cortex. Cerebral cortex is just like it covers the brain just like a cap. It is the first part of the brain, and all other and it covers all other parts of the brain. Cerebral cortex actually a Latin word means outer bark or covering, and it is significantly larger than other parts of the brain, and it covers the lower portion of the brain just like an cap, and it is essential to voluntary movements, sensation, learning, remembering, thinking, emotions, and consciousness. And it consists on lots of grooves and bulges, जिसे हम झुर्रियाँ ठीक है कह सकते हैं, बल खाती हुई
एंड यूजुअली इट इज़ रिलेटेड विद इंटेलिजेंस। ये यूजुअली कुछ रिसर्चेस जो हैं वो ये कहती हैं कि जितनी ज़्यादा जो है ग्रूव्स और बल्जेस ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा जो है एक पर्सन इंटेलिजेंट होगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है डेलिकेट डेवलपमेंट है, ठीक है, एंड highest region of the forebrain, and it is the most recently developed part of the brain in the evolution scheme. In human beings, cerebral cortex is greatly convoluted with lots of grooves and sulcuses, bulges, and considerably enlarge its surface area. It is highly connected with other parts of the brain. Cerebral cortex is divided into two halves called hemispheres। ठीक है, जो cerebral cortex है उसको टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। दरमियान में जिस तरह से एक लाइन होती है, एक जो है उस लाइन के जो एक तरफ का जो पोर्शन है उसको राइट हेमिस्फीयर का नाम दे दिया जाता है, और जो दूसरी साइड का जो हिस्सा है उसको लेफ्ट हेमिस्फीयर का नाम दे दिया जाता है। और इन दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान जो है एक फाइबर्स जो है सीरीज ऑफ फाइबर्स होती है जिसको कॉर्पस कॉलोजम कहते हैं, ठीक है, जो कि इन दोनों को आपस में मतलब करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। वन साइड ऑफ कॉर्टेक्स रिमेन्स इन कंप्लीट कांटेक्ट विद अदर, ठीक है, यानी कि जो एक जो हिस्सा है, एक जो हेमिस्फीयर है वो दूसरे हेमिस्फीयर से जो है राब्ते में रहता है। अच्छा, अब ये जो टू हेमिस्फीयर्स हैं, ये इसमें जो इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, दोनों जो हैं डिफरेंट जो हैं आप कह सकते हैं कि फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं। डोमिनेंट दोनों में सेपरेटली डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो यूजुअली लिटिल लार्जर होता है देन एज कंपेयर टू राइट हेमिस्फीयर। सो इट इज sensitive for language because language center is housed in the left cerebral hemisphere, but for all right-handed people the two hemispheres of the cerebral cortex connected via corpus callosum for contact, complete contact, and left hemisphere is involved in speech production, uh, language skills, information. All these functions are controlled by left hemisphere, and right hemisphere is associated with skills, visual arts, information, painting. This is controlled by right hemisphere. अच्छा, अब जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट बॉडी जो है साइड उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट जो बॉडी है उस साइड की जो है तमाम फंक्शन उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस है ऑपोजिट डायरेक्शन में या ऑपोजिट साइड के जो फंक्शंस हैं उनको जो है इन्फ्लुएंस करने का ये जो प्रोसेस है इसको कॉन्ट्रालेटरलिटी कहते हैं। अच्छा, देन अब जो दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं उनमें फोर लूप्स होते हैं। फोर लूप्स जो है लेफ्ट में होते हैं, फोर लूप्स ही राइट हेमिस्फीयर में होते हैं। अब फर्स्ट वन जो है दैट इज फ्रंटल लूप। इसकी जो लोकेशन होती है ये बिल्कुल फोरहेड के अबव, जहाँ पे हेड जो है वो स्टार्ट होता है, वहां से जो है मिड ब्रेन तक जो है वो जाता है। देन वहां से जो है पेरिटल लूप स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पीछे जो है हमारा बैक पे फ्लैट एरिया आता है वहां तक जो है उसकी लोकेशन है। जो फ्लैट एरिया है उस साइड पे जो है नेक से कनेक्ट होने से पहले पहले वहां पे ऑक्सीपिटल लूप की लोकेशन होती है, दैट इज द थर्ड लूप, एंड द फोर्थ लाइज और लोकेटेड अबव द टेम्पल्स। जो हमारी ईयर्स हैं बिल्कुल उनके अबव इसकी लोकेशन होती है। और ये जो फोर लोब्स हैं इनके अपने अपने फंक्शन है, डिफरेंट जो है ये फंक्शंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो फ्रंटल लोब है बेसिकली इसका जो पर्पस होता है
वो होता है थिंकिंग, प्लानिंग, इंटीग्रेटिंग द ब्रेन एक्टिविटी, इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जो पैरिटल लोब है ये सेंसेशन एंड परसेप्शन ऑफ टच जो है इसको कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब is sensitive for hearing, processing, memory, and the occipital lobe is sensitive for visual information. With the help of eyes जितना भी जो है अगर हो रही होते हैं प्रोसेसेस उनके लिए जो है ये सेंसिटिव होता है। उसके बाद फोर ब्रेन जो है इसमें थैलेमस जो है वो शामिल है। थैलेमस जो है ये एक रिले स्टेशन का काम करता है, ठीक है। सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है उसको जो कॉर्टेक्स के में जो है पास करता है और देन उसको ऑर्गेनाइज करता है। थैलेमस जो है इट इज पोजीशन राइट below the cerebral cortex and it is ultimately involved with its functioning. The major role of thalamus is processing information from the senses, okay, and the many impulses from the cerebral cortex to lower brain structure, spinal cord, and to the peripheral nervous system also pass through the thalamus. Thalamus collect and direct sensory messages to appropriate areas of cerebral cortex and message from lower body, eyes, ears, and other senses थ्रू द थैलेमस जो है प्रोसेस होती है। यानी बेसिकली ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, कॉर्टेक्स तक एंड उसको ऑर्गेनाइज करता है। देन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस लोकेटेड नियर द लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल में जो होता है, इट इज इन्वॉल्व इन कंट्रोल इमोशंस एंड मोटिवेशन। जो है जितने भी इमोशंस जो हैं और जितने भी मोटिवेशन में जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं उन तमाम को कंट्रोल करने का जो है जिम्मेदार होता है। ये टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्स्ट, हंगर, टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑक्सीजन, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज, स्लीप, पेन रिडक्शन, ये तमाम चीज़ें जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि मोटिव्स में आ जाती हैं। देन सिंगुलेट गायरस, it is just like a belt like structure in the middle of the brain that plays important role in attention and cognitive control. Then limbic system controls also emotions जो हैं उनको जो है इन्फ्लुएंस करता है। और लिम्बिक सिस्टम जो है इसमें टू फर्दर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर जो है हिप्पोकैम्पस आ जाता है और एमिगडाला आ जाता है। हिप्पोकैम्पस जो है ये भी इमोशंस से रिलेटेड होता है, इसके लिए जो है ये सेंसिटिव होता है। एमिगडाला जो है ये एक आलमंड शेप जो होता है और ये टेम्पोरल लोब की बेस के साथ जो है ये मतलब कनेक्टेड होता है। ये ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्रिमिनेट करने में, डिफरेंस के लिए, ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए, फूड, ठीक है, एंड सोशल जो है राइवल्स, इन चीज़ों के लिए सेंसिटिव होता है। देन बेसल गैंग्लिया जो है इट इज द collection of structures surrounded the thalamus involved in voluntary movements or controls. The basal ganglia works with the cerebellum and the cerebral cortex to control and coordinate voluntary movements. Basal ganglia helps people to engage in habitual behaviors, जैसे like riding, bicycle, stitching something, swimming. Individuals with its damage suffer from unwanted movements or too little movements. ओके, देन मिड ब्रेन जो है इसका कोई सब पार्ट नहीं है, ये जस्ट जो है कनेक्ट करता है अपर ब्रेन को और लोअर ब्रेन को, उनमें कम्युनिकेशन का एक तरह से काम कर रहा होता है, पास करता है इंफॉर्मेशन को।
अच्छा, जो हाइपोथैलेमस होता है उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड उसके नज़दीक लोकेट होता है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये तमाम जो बॉडी में हॉर्मोन्स की सिक्रीशन होती है, जो डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर जो हैं, वो डिफरेंट हॉर्मोन्स सिक्रीट कर रहे होते हैं, उसको मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर। अच्छा, फिर जी हाइंड ब्रेन आ जाता है, थर्ड मेजर पार्ट, लास्ट वन। इट कनेक्टेड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे हमारा ये ऑक्सीपिटल लोब होता है, जो फ्लैट सरफेस है हमारे पीछे। उसके बाद जो है ब्रेन स्टेम आ जाता है, ठीक है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये अटैच होता है एंड फर्दर। तो इसके जो सब स्ट्रक्चर्स जो हैं आ जाते हैं, उसमें हमारे पास जो है पोन्स, मेडोला एंड सेरिबेलम आ जाता है। ये बेसिकली जो है हार्ट रेट, अराउजल जो है उसको, ब्रीथिंग को, और जो बेसिक फंक्शंस ऑफ सर्वाइवल है उनको कंट्रोल करता है। अब जो पोन्स है, पोन्स जो है ये स्लीपिंग एंड अवेकफुलनेस जो पैटर्न है, सोने एंड जागने का जितना भी प्रोसेस है, उस चीज को जो है ये इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जस्ट अबव द मेडुला जो होता है ये लोकेट होता है, एंड it relays the messages from the spinal cord up to higher brain centers and reverse the relay for motor impulses. Own centers are involved in determining our cycles of being awake and being asleep. Pons then connect to the cerebellum and involved in dreaming and waking from sleep. Then medulla. मेडुला जो है ये लोअर स्ट्रक्चर है ब्रेन का, ठीक है, लोअर ब्रेन में आ जाता है। एंड इसका जो फंक्शन होता है, इट कंट्रोल्स हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीथिंग, वॉलेंटरी मूव, सॉरी, लाइक स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग रिफ्लेक्सेस जो है उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। मेडुला जो है it is the part of the lowest brain, ठीक है, and have many small structures within medulla, reflexes वगैरह को कंट्रोल करता है, eyes, tongue movements को, and breathing, ठीक है, heart rate। medulla At the medulla, nerve fibers to find from brain cross over from left and right and vice versa. By the left side of the brain receives impulses from and sends impulses to and receive messages from the right side of the brain. This process of crossing fibers from one side of the brain to an other opposite side of the brain is called cross-laterality, and it takes place in the brain stem. Then हमारे पास cerebellum आ जाता है, the last part of the hind brain. Cerebellum involved in coordinate voluntary movements and balance. It is also called as little brain. लैंग्वेज, बैलेंस, मूवमेंट, लर्निंग, वॉलंटरी मूवमेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो है इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। The cerebellum is a brainstem structure whose major function is to smooth and coordinate rapid body movements. Cerebellum is more or less spherical and is positioned behind the pons under the base of the skull. Its outer region is very convoluted, meaning that the tissue there is folded in upon itself, grooves की तरह, sulcuses की तरह, and creating many deep lumps. Movements are coordinated by the cerebellum because of the close relationship between the body movement and vision. Many eye movements originate in cerebellum, and complex series of movements are made regular and smooth with the help of cerebellum. Movement of mouth, tongue, lips, all are influenced by the cerebellum. A person with damaged cerebellum may appear to quit, drunk,
Damage the cerebellum may disrupt motor activity in other ways. If the outer region of cerebellum is damaged, a person may suffer from jerks, tremors, tremors, involuntary trembling movements. Damage of inner areas may lead to tremors at rest. The limbs or head may shake or twitch when the person wants to remain still. Then सेरिबेलम के जो है बाद ब्रेन स्टेम का एक थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करना चाहूँगी. ब्रेन स्टेम includes much of the hindbrain and midbrain, and it is called because it looks like a stem. It is the brain's oldest and innermost region. Therefore, it is called central core. The brainstem begins where the spinal cord enters the skull and swells slightly, forming the medulla. From the rear of brainstem, cerebellum extends. Two important structures that together from the brainstem are medulla and pons. Brainstem connects with the spinal cord and its lower end and then extends upwards to encase the reticular information in the midbrain. ठीक है. Then उसके बाद spinal cord start हो जाता है. It is a massive collection of neurons within the spinal column that looks like a section of rope. Spinal cord एक रस्सी की तरह नजर आता है. ठीक है. प्रोटेक्टेड हार्ड बोन में जो है ये तब होता है, महफूज होता है वहाँ पे, और इस तरीके से जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन से जो है पहुँचती है स्पाइनल कॉर्ड में, एंड इस तरह से तमाम जो प्रोसेस है वो स्मूथली जो है वो अपने कंप्लीट होता है. न्यूरॉन्स जो होते हैं इसमें विद द स्पाइनल कॉलम दैट लुक्स लाइक अ सेक्शन ऑफ रोप. इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड बोन and cartilage of the vertebrate. Spinal cord itself is made up of delicate nerve fibers living just inside or backbone. Spinal cord itself is located in the middle of the spinal column that reaches from our lower back to high in our neck, just below the neck. Sensory and motor neurons enter and leave the spinal cord from the side. ग्रे मैटर की बनी होती है. ठीक है. बटरफ्लाई रिजेंबलिंग बटरफ्लाई एंड आउटसाइड एरिया इज लाइट एंड वाइट मैटर. तो इस तरीके से जो है ये सारा प्रोसेस होता है. और जो हमने स्टार्ट में पढ़ा न्यूरॉन्स जो हैं, मोटर, सेंसरी मोटर इंटरकनेक्टर्स, किस तरह से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन तक, वहाँ से फर्दर प्रोसेस होता है, फिर वो वापस आती है, फिर कोई एक्शन जो है, कोई रिफ्लेक्स जो है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है वो एग्जिबिट होती है. तो ये तमाम जो ब्रेन के मेजर पार्ट्स एंड सब पार्ट्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरीके से जो है ये तमाम प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है. बज़ाहिर जो है हमें ऐसे लगता है कि जिस तरह से हमने एक चीज़ जो है उसे देखा है या कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव किया, प्रोसेस हो गया, लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और किन किन स्टेजेस से गुजर के जो है वो कंप्लीट होता है. अभी भी जो है हमने इसके मेजर पार्ट्स जो हैं और चीज़ें इनको डिस्कस किया है. अगर हम डेप्थ में जाएं तो फर्दर ब्रेन में और भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, उनके भी आगे सब पार्ट्स होंगे, और मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये जो तमाम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है. That is our 10th lecture now completed with some detail on brain and its structure. Inshallah, in our next lecture, 11th lecture, we discuss some methods of measuring brain and in which way we see structure and function of these brain parts. ठीक है. इन चीज़ों को जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे.